Good morning class. So we have already completed two lessons, lesson number 1 and 2. Now we are directly moving to lesson number 4, the Supreme Court. So in this lesson what we are going to see is different type of courts that are present in our judiciary department. Okay. So we are skipping lesson number 3 for now. In the remaining videos there might be chance that we will cover that lesson also. So come to page number 25. So here we have to see the significance, मतलब जो importance हर एक कोड और इंडियन कोड में इंडिया में कितने कोड्स हैं और उनकी significance, उनकी importance क्या है, that we are going to discuss in this lesson. Okay, turn your page. So here you have to read and think. मतलब first you have to read and then try to understand it and think about the different factors that are stated here. So the law is required for what? एक law या कोई rule की ज़रूरत एक government को चलाने के लिए क्यों ज़रूरत इतना important होता है? Because this law makes sure that the people have safety, they are getting prosperity, they are having welfare. That is what is important to have a certain law. So when any citizen or institutions breaks any law, a specific process is followed to address the issue. तो अगर कोई person है उसने कोई भी एक law जो हमारे constitution में define है या कोई भी rule book में mention rule को break करता है तो एक certain procedure एक certain steps है जो लिए जाते हैं ताकि हम उस issue को address कर सकें और उस issue में जो भी culprit है या जिसने भी rules break किए हैं he is supposed to punish. So there is a hierarchy of court to impart justice in our country. तो हमारी country में अलग-अलग levels पे we have court ताकि जो justice है वो provided हो और जो rule है किसी ने अगर break किया है तो उसे उस rule break करने के लिए proper punishment मिले. So it starts with तालुका court as the lowest court succeeded by the district court, high court and the supreme court. So in the lowest level पे we have तालुका court and then above that we have district court, then high court and the ultimate upper court is the supreme court. So the judiciary is one of the most important organ of the government. तो government का सबसे important part क्या है? Judiciary to serve the law. मतलब अगर कोई गलती करता है कोई law break करता है तो the justice should be served. So judiciary is kept independent from the legislative and the executive. तो जो three different organs हैं the government के judiciary, legislative, executive, in that judiciary is kept independent. मतलब उसको ये दो departments affect नहीं करते, judiciary को independent रखते और क्यों रखते और उस independent रखने का main intention क्या है that we are going to discuss in this lesson. So what is the role of the Supreme Court? तो Supreme Court को इतना importance क्यों? क्योंकि क्यों वो एकदम top का court माना जाता है that we are going to see. So Supreme Court is the highest
PIL. So the Supreme Court interprets the Constitution and advises the President and the Parliament in the same regard. तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को देखेगी, उस PIL को स्टडी करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चेक करेगी, एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट टू कंसिडर दिस मैटर. It also enjoys the power to review the judgment passed by any of the lower court. तो हमें देखा था तालुका कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सारे कोर्ट्स में जो जजमेंट पास हुई है उस जजमेंट को स्टडी कर इफ द सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू मेक एनी चेंजेस देन सुप्रीम कोर्ट कैन मेक दैट चेंज. वो पावर जो अल्टीमेट पावर या अल्टीमेट सुप्रीमेसी है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व्स द डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. तो अगर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा है, उसे सॉल्व करने का पावर इज इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इफ द डिस्प्यूट इज बिटवीन दी टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को भी सुप्रीम कोर्ट कैन सॉल्व इट. इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट को भी कौन फिनिश कर सकता है? द पावर इज इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो टू अंडरस्टैंड हाउ सुप्रीम कोर्ट मेक्स दिस डिसीजन और हाउ सुप्रीम कोर्ट सॉल्व दिस डिस्प्यूट, you have to see an example that is stated here when Save Narmada movement was happening in Gujarat. So there was a protest against increasing the height of Narmada Dam about 110 meters near Navga. So यहाँ पे जो नर्मदा डैम है उसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए there was a protest happening in Gujarat. So this environmentalist organizations हो या NGOs जो है मध्य प्रदेश के, वो क्या बोल रहे थे कि मतलब कि ट्राइबल्स की जो राइट्स है उसके अगेंस्ट है, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसे इस प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान होगा या उनकी नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगी. सो द सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट पास किया 8 मार्च 2006 में, इस कॉन्फ्लिक्ट जो दो स्टेट्स के बीच में था, गुजरात और मध्य प्रदेश, this Supreme Court stated that according to the rising population, जिससे rising population हो रहा है, it is necessary to carry out this project. मतलब प्रोजेक्ट को करना is important या नर्मदा डैम की जो हाइट है उसे इंक्रीज करनी पड़ेगी. Well, there was a possibility of positive development in the environment में पॉजिटिव डेवलपमेंट भी आएगा और वहाँ पे बेनिफिट जो भी लिविंग बींग्स हैं उसको बेनिफिट होगा ड्यू टू दिस सरदार सरोवर योजना. एंड जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की जो वाटर की जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होगी थ्रू दिस योजना. एंड जो डेजर्ट का एक्सपेंशन है दैट कैन ऑल्सो बी केप्ट अंडर कंट्रोल. सो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ द ट्राइबल्स अफेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट से जो अफेक्ट हुए हैं ट्राइबल्स, उनको प्रॉपर दूसरा हैबिटेट प्रोवाइड करना वो शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड बी केप्ट एज टॉप प्रायोरिटी. मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द ट्राइबल्स हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट. सो उनकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो यानी उस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट हैज सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज हैपनिंग बिटवीन टू states. So in this way, it is the responsibility of the Supreme Court to solve the dispute between two states, between the central and the state, or between the citizen and the government. These all disputes are to be solved by the Supreme Court, and they also have the right to change the judgment that is passed by the any lower courts. So turn your page. What is judiciary independent? Means why is judiciary independent? We have already seen that judiciary is kept independent on the different organs of the government. So imagine there is a situation where there is a powerful person, मतलब जो strong है, जो बहुत सारा influential है, जो बहुत सारे हाई पोस्ट में रहने वाले कुछ लोगों को जानता हो, ऐसे पर्सन ने आपकी लैंड को, जो आपकी फैमिली का बिलोंगिंग लैंड है, उसे कैप्चर कर ले, तो आप क्या करोगे? यू विल
file a petition against that person in the court. पर अगर court considers that influential person over him, मतलब आपसे ज़्यादा importance उस influential person की हो और court आप decision उनके favor में दे, तो what would be the result? Would there be the justice served? यानी आपको justice मिलेगा? No. So it is important कि जो judiciary है वो हर एक फैक्टर से डिप्राइव मतलब इंडिपेंडेंट हो, उसके जो डिसीजंस हो वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो, किसी से बायस्ड नहीं हो। सो द जुडिशरी इज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। इफ अ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन कैन कंट्रोल द जुडिशरी, तो क्या होगा? इम्पार्शियल नहीं होगा, पार्शियल जजमेंट वुड बी सर्व्ड। सो दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। एंड thus once the judges are appointed in the high court and the supreme court, उन्हें एक्सपेल करना is very difficult position, मतलब वो एक रिस्पेक्टिव पोजीशन है, उस रिस्पेक्टिव पोजीशन से उनसे एक्सपेल करना is a difficult task. And any person or an individual if feels that he has not been served the fundamental rights, he can go to the court. अगर जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटेड हैं वो अगर आपको नहीं मिल रही है, आपको डिप्राइव रखा जाता है, तो यू कैन रीच आउट टू द कोर्ट एंड फाइल अ पेटिशन और फाइल अ PIL so that the justice is served and you get your fundamental rights. So are the court at various level connected with one another? तो हमने देखा डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट कोर्ट्स है that are running in our country। ये कोर्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्या ऐसा है कि जो जजमेंट पास हो रहा है इज अफेक्टिंग द डिफरेंट कोर्ट्स रनिंग एट डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री? वो ये पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो टू अंडरस्टैंड दिस देयर इज अ एग्जांपल गिवन। सो द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ पेटिशन, अगर पेटिशन कैसे फाइल करेंगे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। So when an individual finds the judgment given by the lower court not satisfactory, then he or she can file a petition in the upper court. तो जब lower court में फाइल की हुई petition में जो judgment आया, if you are not satisfied with it, you can go to the upper court. मतलब आप petition upper court में डाल सकते हैं कि I am not satisfied with so and so judgment, so I want justice, so I am reaching out to the upper court. To understand this concept, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है केस। So there were few houses in the southern direction where Ratlam municipality had constructed road. तो Ratlam municipality ने जहाँ रोड कंस्ट्रक्ट किया है उसकी साउदर्न साइड पे कुछ घर हैं। Behind these houses was an old road leading to the government college. इन घरों के पीछे एक रास्ता है, ओल्ड रोड है जो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाता है। नियर द जंक्शन पे जहाँ से ओल्ड रोड और न्यू रोड जा रहा है वेयर वी हैव अ कल्वर्ट मतलब यू कैन से एक टनल जैसा जिसके ऊपर से रोड जाती है और गंदा पानी है या कोई फैक्ट्री से रिलीज होता हुआ डर्टी वाटर फ्लोज, ऐसे जगहों को यू कैन से culvert, that is a tunnel from where the dirty water is passing. So industry releasing dirty water वहाँ पर है that is full of chemicals. So वहाँ से एक foul smell, bad smell, mosquitoes reach out होती है इस residential areas में। और वहीं पर भी एक slum place है, मतलब एक झोपड़ी जैसी एरिया है where they do natural call by the sides of this culvert। जो टनल है उसके पास में natural call मतलब they use that place for washroom and all. So the health department फेल हुआ कि वहाँ से mosquitoes और जो bad smell है उसकी वजह से residential को affect करेगा, so they have to stop all this. But with repeated applications file करने के बाद भी there was no result. So health department also failed to take care of this issue. इस issue को solve करने में health care department कुछ नहीं कर पाया। ऐसा result जो residents हैं, जो घर owners हैं, जो घर हैं वहाँ पे उनके owners ने तालुका कोर्ट में एक petition file की। So इस पेज पे you have seen the judgment या verdict। judgment की verdict होता
लोग हैं, टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर पा रही थी। और दोनों इंस्टीट्यूट्स यानी म्यूनसिपैलिटी एंड द टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट are ordered to cleanse the place with immediate effort, and within 15 days the work of a closed drainage should be completed. तो जो ड्रेनेज क्लोज हो गया था उसके वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करें। और दोनों इंस्टीट्यूट्स ने एफिशिएंटली वर्क नहीं किया। ऐसा वर्डिक्ट, ऐसा जजमेंट किसने पास किया? तालुका कोर्ट ने। पर म्यूनसिपैलिटी जो थी उनको इस जजमेंट से दे वर नॉट फीलिंग सेटिस्फैक्टरी, इसलिए उन्होंने क्या किया? इस जजमेंट को क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने कहाँ किया? रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी अपर कोर्ट में अपील की। सो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट था वो क्या है? द जजमेंट ऑफ तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर। तो उन्होंने जो तालुका कोर्ट का जजमेंट था उसे अनफेयर डिक्लेयर कर दिया, मतलब गलत डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने तो इस बात से कौन अपसेट हुआ? जो रेसिडेंशियल पार्ट था दे गॉट अफेक्टेड। उन्होंने उस वर्डिक्ट को, उस जजमेंट को चैलेंज किया इन द अपर कोर्ट, दैट इज द हाई कोर्ट। मतलब अगर आप जजमेंट से हैप्पी नहीं हो तो यू कैन फाइल ए पिटीशन एंड चैलेंज द जजमेंट इन द अपर कोर्ट। सो यहाँ पे रेसिडेंट्स हैप्पी नहीं था जजमेंट से, सो उन्होंने उस जजमेंट को क्वेश्चन किया इन द अपर कोर्ट, दैट इज High Court. So for a closed drainage system, 7-month time is given instead of 15 days. तो जो 15 days का टाइम तालुका कोर्ट ने दिया था उससे ज़्यादा 7 months का टाइम दिया उस क्लोज ड्रेनेज को ओपन करने के लिए। एंड द पिट शुड बी फिल्ड विथ सॉइल। जो वाटर का जो फ्लो था उस पिट्स को क्लोज कर ताकि मॉस्किटोज और बैड स्मेल को स्टॉप कर सके। और जो वर्क जो करना था जल्द से जल्द उस पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए 2 years का टाइम हाई कोर्ट ने दिया। बट रतलाम म्यूनसिपैलिटी जो थी वो अनहैप्पी थी इस हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से। सो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? उन्होंने तालुका कोर्ट के ऑर्डर्स को के साथ कुछ एडिशनल जजमेंट भी दी, जैसे कि केमिकल और डाई प्लांट जो फैक्ट्री थी वहाँ पे उसे क्लोज करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से पॉल्यूशन हैपन हो रहा था, रिस्पॉन्सिबल था पॉल्यूशन के लिए। सो दिस केमिकल एंड डाई प्लांट को क्लोज करने का ऑर्डर दिया और म्यूनसिपैलिटी और स्टेट गवर्नमेंट शुड लुक इनटू द मैटर। तो जल्द से जल्द उस प्लांट को क्लोज करने का ऑर्डर किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ जो तालुका कोर्ट ने जो डिसीजन, जो वर्डिक्ट दिया था वो भी कैरी आउट करने का ऑर्डर दिया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर आप जजमेंट से हैप्पी नहीं हो तो आप अपर कोर्ट में फाइल कर सकते हो पिटीशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कोर्ट कैसे वर्क करता है, ओके, और कौन से लेवल पे कोर्ट्स प्रेजेंट है अपनी कंट्री में। सो टर्न योर पेज, वी हैव द लास्ट टॉपिक, कैन एनी सिटीजन अपील इन द कोर्ट। सो यानी कोई भी सिटीजन अगर कोर्ट में अपील कर सकता है, we are going to see can it happen or not. So we have learned that any citizen can appeal in the court. यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई इन द कोर्ट कि हाँ मेरे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे। इन रियलिटी क्या होता है, पुअर पीपल है वो डिफिकल्टी में फेस करते हैं व्हेन दे हैव टू अप्लाई और फाइल एन पिटीशन इन द कोर्ट। क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है पुअर लोगों को? कि देयर नीड लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पेपर वर्क होता है जो करना पड़ता है व्हेन यू हैव टू फाइल अ पिटीशन। कि मनी रिलेटेड या फिर जैसे इलिटरेट लोग होते हैं, पुअर पीपल इलिटरेट भी होते हैं तो वो पेपर वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है कि आपको कोर्ट जाना है, बार बार आपको अप्लाई करते रहना है। ये सब क्या है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर दैट पीपल। क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट, मनी कंस्ट्रेंट, उसके साथ पेपर वर्क भी, इलिटरेट पीपल का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो पुअर पीपल डोंट गो इजीली टू द कोर्ट फॉर फाइंडिंग जस्टिस। So keeping in this fact in mind, the Supreme Court announced the provision of PIL. तो
इस प्रॉब्लम को, इस पुअर पीपल की प्रॉब्लम को देखकर जो सुप्रीम कोर्ट ने PIL का सिस्टम ओपन किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन द ईयर 1980। इसकी हेल्प से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि मैक्सिमम लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास आए, और कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है किसी भी पुअर पीपल के बिहाफ पे। यानी कोई डिप्राइव्ड क्लास है, वो ज़्यादा कोर्ट में जाके फाइट नहीं कर सकते, उनके बिहाफ पर, उनकी जगह पर एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट कैन फाइल द केस। ये क्यों वॉलंटियर किया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो इश्यूज हैं वो लेकर आए। So after 1980, PIL was used to bring justice to make deprived section of the society। ताकि PIL का यूज़ ज़्यादा यूज होने लगा, ताकि जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो बैकवर्ड क्लास है, उन्हें जस्टिस सर्व हो। फॉर एग्जाम्पल PIL और फेल टू फ्री लेबर्स फॉर इनह्यूमन लेबर, या कोई प्रिजनर है जो बहुत सालों से जेल में ही है, भले उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो उसे जेल से बाहर लाने के लिए, ऐसे सब केसेस में यू कैन फाइल द PIL। So if a Supreme Court finds any PIL regarding fundamental rights, its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of people or the institution। तो अगर सुप्रीम कोर्ट PIL को स्टडी करने के बाद रियलाइज करती है कि किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट से उसे डिप्राइव रखा है, उसे वंचित रखा है, तो कोर्ट पनिश कर सकती है ऐसे लोगों को, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को उन तक पहुंचने नहीं देते। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। रीड द लेसन, मेक श्योर दैट you have understood all the topics, and then also if you have a doubt you can ask me.